Hello everyone, welcome back. Today in forging processes, I am going to discuss about the various methods of analysis in forging. Earlier we discussed about the two methods for open die forging and close impression die forging. In today's lecture, I will be discussing with you the pressure variation during forging process. How the pressure varies during the forging process. Here it is one example of the forging operation. Here this is the our upper die and this is our lower die. Now what happens here? It is our workpiece and we have to analyze the pressure variation. जो suppose if we take this amount of section with dx thickness and area, suppose we take t thickness over the length side and 2l over this is the total workpiece length, and horizontally if we take the height is h. So for that we can find how the stress varies or pressure varies during that. Here the stress on small element with dx length, here this is the enlarged section of this is the dx length, and how this and the height will be h, and how the pressure varies in this we will discuss here. Figure shows a simple open die forging operation of a flat strip. A flat strip is there. Following assumptions are made to make the analysis simple. यहाँ पे कुछ assumptions किए गए इस analysis को simplify करने के लिए. सबसे पहला assumption है forging force F attains its maximum value at the end of operations, which means that forging force जो है वो एंड में मैक्सिमम होगा. जब जो ये डाई है वो अपनी एंड पोजीशन पर आएगी तब जो फोर्जिंग फोर्स होगा F, दैट विल बी मैक्सिमम. द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वर्कपीस एंड प्लेट इज कांस्टेंट. जो भी हमारा वर्कपीस है और ये हमारी प्लेट है, ठीक है, डाई, इन दोनों के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू वो कांस्टेंट है. That is our assumption. The thickness of workpiece is small compared to its other dimension, so that the variation of the stress field along the y direction can be neglected. Now here you can see we have taken, this is the x direction and this is our y direction. So we are considering only variation in thickness, which means this dx वेरिएशन हम इसी डायरेक्शन में जो है वर्कपीस का वो कंसिडर करेंगे. इस डायरेक्शन में y डायरेक्शन में क्या है, जो भी थिकनेस है वर्कपीस की दैट इज स्मॉल कंपेयर टू इट्स अदर डायमेंशन. सो जो भी वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस होगा अलोंग y डायरेक्शन कैन बी नेग्लेक्टेड. यहाँ पे जो y डायरेक्शन में जो भी स्ट्रेसेस लगेंगे वो हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. द लेंथ ऑफ स्ट्रिप इज मच मोर देन इट्स विड्थ. और यहाँ पे हमने देखा है जो भी स्ट्रिप ली है उसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा है कंपेयर टू इट्स विड्थ, एंड द प्रॉब्लम कैन बी टेकन एज अ केस ऑफ प्लेन स्ट्रेन. सो हमको हम यहाँ पे प्लेन स्ट्रेस का केस ले सकते हैं. ठीक है, क्योंकि ये एक प्लेन में कन्वर्ट हो जाएगा इसकी वजह से. द एंटायर वर्कपीस इज इन प्लास्टिक स्टेट ड्यूरिंग द प्रोसेस. जो अगला अजम्पशन है वो क्या है कि जो भी पूरा वर्कपीस है वो प्लास्टिक स्टेट में है, इलास्टिक स्टेट में नहीं है. ठीक है, यानी कि जितना प्रेशर हम अप्लाई करेंगे तो उतना डिफॉर्मेशन वो उसका होगा, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रिटेन नहीं करेगा. एट द इंस्टेंट शोन द थिकनेस ऑफ द वर्कपीस इज h एंड इट्स विड्थ इज 2l. कोई भी एक इंस्टेंट्स पे हम अगर देखेंगे
कि जो भी वर्कपीस है उसकी थिकनेस है, ये हमारा वर्कपीस है, ठीक है, उसकी जो थिकनेस है वो हमने h ली है, और जो भी विड्थ है वो 2l ली है. The element dx is at a distance x from the origin and it is located in the left half of workpiece. यहाँ पे ये जो सेंटर पोर्शन है और जो लेफ्ट हाफ है वहाँ पे हमने एक एलिमेंट लिया है dx एंड इट इज़ एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम लेफ्ट हाफ ऑफ वर्कपीस, यानी कि ये जो है लेफ्ट पोजीशन, लेफ्ट कॉर्नर है, वहाँ से x डिस्टेंस पे हमने एक पार्ट सिलेक्ट किया, ठीक है, element dx. Obviously, if the element is taken in the right half on the workpiece, then the direction of tangential stress will be reversed. अगर हम राइट साइड पे अगर लेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, जो भी यहाँ पे टेंजेंशियल स्ट्रेस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा. अगर हम यहाँ पे स्ट्रिप लेंगे तो जो भी टेंजेंशियल फोर्स की डायरेक्शन होगी वो रिवर्स हो जाएगी. The value of tau is equal to mu p in the sliding or non-sticking zone 0 less than or equal to x less than or equal to xs and equal to shear yield stress k in the sliding zone xs less than or equal to x less than or equal to l. यहाँ पे जो shear stress है टाउ की वैल्यू वो इक्वल टू म्यू पी होगी इन द स्लाइडिंग और नॉन स्टिकिंग जोन, जो 0 से लेके एक्स एस यानी कि स्लाइडिंग जो पोर्शन है वहाँ से लेके और एक्स जो है वो उसके बीच में रहेगा, एक्सेस और 0 के बीच में. तो क्या होगा कि जो भी टाउ है वो म्यू पी के इक्वल रहेगा, म्यू एंड पी. म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड पी इज द प्रेशर अप्लाइड ऑन द स्ट्रिप इन द स्लाइडिंग और नॉन स्टिकिंग जोन एंड इक्वल टू शियर यील्ड, यानी कि के इक्वल टू हो जाएगा जो भी शियर स्ट्रेस है, ठीक है, शियर यील्ड स्ट्रेस इन द स्लाइडिंग जोन एक्सेस टू एल. यानी कि ये जो है एक्स, ठीक है, हम अगर वर्कपीस का ये एरिया ले, ठीक है, सो यहाँ पे सपोज ये 0 है, यहाँ पे एक्स एस है और यहाँ पे एल है, मतलब ये सेंटर वाली लाइन है, और हमारा ये वर्कपीस है सपोज ऐसे है, तो यहाँ पे ये सेंटर लाइन है. एल. अभी क्या है कि हमने जो स्ट्रिप ली है, ठीक है, वो सपोज यहाँ पे है डी एक्स इन बिटवीन, यानी कि ये जो x की वैल्यू है x दैट विल बी बिटवीन 0 एंड एक्स एस. तो क्या होगा, जो यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस होगा टाउ विल बी इक्वल टू म्यू पी. और अगर सिमिलर केस हम ले, जो ये स्ट्रिप है उसको हम यहाँ से हटा के अगर यहाँ पे मेंशन करें एक्स एस, यहाँ पे डी एक्स यहाँ पे हो सपोज, तो ये जो x डिस्टेंस होगा वो किसके बीच में होगा, एक्सेस और l के बीच में. तो उसके लिए जो टाउ है दैट विल बी इक्वल टू k, दैट इज शियर यील्ड स्ट्रेस, ठीक है. इट कैन बी शोन दैट द xs इज गिवन बाय xs इज इक्वल टू h बाय 2 म्यू ln 1/2 म्यू. सो हम उसके ऊपर से जो एक्स एस का इक्वेशन है वो हम लिख सकते हैं, ये डिराइव किया गया है, एक्स एस इज इक्वल टू एच अपॉन 2 म्यू ln 1/2 म्यू. दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द एक्स एस, दैट इज द स्लाइडिंग डिस्टेंस, ठीक है. और आगे एंड द प्रेशर इन द नॉन स्टिकिंग एंड स्टिकिंग जोन represent respectively are given by P1, जो भी नॉन स्टिकिंग जोन है और स्टिकिंग जोन है उसके लिए यहाँ पे P1 और जो P2 है इन दोनों का इक्वेशन मेंशन किया हुआ है. जो P1 का इक्वेशन है वो यहाँ पे यील्ड शियर स्ट्रेंथ और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फिर हाइट एंड एक्स, जो भी
स्ट्रिप है उसकी जो भी थिकनेस डिस्टेंस है फ्रॉम द लेफ्ट पोर्शन, और वो है 0 से एक्सेस के बीच में, और अगर एक्सेस से ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पे क्या होगा कि 1/2 म्यू 1 माइनस एल एन 1/2 म्यू प्लस एक्स एस इंटू 2K होगा। ठीक है, इस वाले पोर्शन की जगह पे ये वाला पोर्शन आएगा। So the total forging force therefore is given by F is equal to integration of these two, यानी कि जो टोटल फोर्जिंग फोर्स होगा वो इन दोनों का हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, अब फ्रॉम 0 टू एक्सेस एंड देन एक्सेस टू एल, इन दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको जो टोटल फोर्जिंग फोर्स होगा, अभी ये हाफ वाले पोर्शन के लिए किया, 2 टाइम्स क्यों होगा क्योंकि अभी सेकंड हाफ का भी करना होगा, तो मतलब जो टोटल फोर्जिंग फोर्स विल बी 2 टाइम्स दिस, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, वेयर P1 एंड P2 आर द प्रेशर, जो P1 एंड P2 है वो प्रेशर की वैल्यूज है। नाउ लेट अस डिस्कस वन एग्जांपल फॉर द सेम। A strip of metal with size 20 mm by 20 mm by 180 mm is forged between two flat dies to a final size of 5 by 80 by 180। एक स्ट्रिप है, ठीक है, 20 बाय 20, और जो उसकी विड्थ है वो सपोज है यहाँ पे 180, उसको हमको फोर्ज करना है ये पार्ट को, और जो फोर्ज करके हमने फाइनल साइज जो प्रोड्यूस की है वो है 5 mm थिकनेस है, 80 mm विड्थ है, यहाँ पे ये 5 है, ये 80 है, और यहाँ पे ये 180 है। ठीक है, इस टाइप के फॉर्म में हमको इसको फोर्ज करना है। द एवरेज yield strength फॉर मटेरियल इज 6.8 एंड फाइंड द मैक्सिमम forging force when the coefficient of friction between the job and the die is 0.24 and 0.08। इन दोनों coefficient of friction के लिए हमको मैक्सिमम forging force फाइंड करना है। सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, shear yield stress फॉर द मटेरियल, K की वैल्यू हमको फाइंड करनी पड़ेगी, जिसके लिए ये इक्वेशन है वो याद रखना पड़ेगा। K इज इक्वल टू 0.577 सिग्मा y, सिग्मा y इज द yield strength of material that is equal to 6.8 MPa, and megapascal is also equal to the Newton per mm square. We will get the shear yield stress for the material. Now for mu is equal to 0.24, xs is equal to, this is the equation of the xs as we discussed earlier. We will put here h is given, here height we take the final height that is 5 mm, then mu is equal to 20.24, and we will find the xs value. Now we will find P1 and P2. The P1 equation was P1 is equal to 2 times mu, यहाँ पे जो 3.92 है वो K की वैल्यू है, इनटू e रेस टू 2 टाइम्स म्यू x बाय जो 5 है दैट इज़ द वैल्यू ऑफ स्ट्रिप हाइट। यहाँ पे मैंने ये क्रॉस लिख दिया है, उसकी जगह पे स्मॉल x लिखता हूँ। ठीक है, अभी ये जो है ये उसका कंप्लीट इक्वेशन है फॉर P1 फॉर 0 से एक्सेस तक, मतलब ये एक्सेस की वैल्यू है यहाँ तक के लिए, तो हम P1 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, h म्यू मालूम है, h मालूम है। सो एंड P2 का भी यही जो इक्वेशन है, 2 इंटू P2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स K 1/2 म्यू इंटू
1 माइनस एल एन 1 अपॉन जो भी यहाँ पे 0.84 है, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स म्यू। म्यू को मल्टीप्लाई करने से 24 इंटू 2 मीन्स 0.48, 0.24, and here it is x by h. So the forging force we can find by, if we put the value over here, and by solving the integration we can find the forging force, and we will get the total forging force by multiplying over the area, total area 180 mm. And similarly, where for mu is equal to 0.08, we can find the xs, and there is no sticking zone in this case. The total force is to be calculated assuming only non sticking friction. यहाँ पे कोई भी sticking zone नहीं है, इसकी वजह से here we will find only the P and we will find the force. यहाँ पे जो भी नॉन स्टिकिंग जोन है वो नहीं है, उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ इसके लिए हम फाइंड करेंगे। ठीक है, ये जो वैल्यू है वो हमने आगे डिराइव की थी 0 से 40। फिर यहाँ पे जो नॉन स्टिकिंग जोन है वो हमको नहीं मिलेगा, सो वो हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ये आप आगे देख सकते हो कि यहाँ पे जो रेंज थी वो 0 से 7.6 थी और 7.6 से 40 थी। ठीक है, सो यहाँ पे हायर वैल्यू है, उसकी वजह से यहाँ पे जो भी स्टिकिंग जोन है यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, सो हम नॉन स्टिकिंग जोन के लिए ही यहाँ पे वैल्यू फाइंड करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे टोटल फोर्स मिल जाएगा। इन दिस वे वी कैन फाइंड द टोटल फोर्जिंग फोर्स। The next topic is forging of a circular disc. This is our circular disc. Same way we have to take one portion of the disc and we will find the equation for forging of circular disc. We will similarly take one small portion dr. Figure shows plain die forging of a circular disc at end of forging operation where the forging force F is maximum. जब F मैक्सिमम होगा तब के लिए जो सर्कुलर डिस्क का जो भी पोर्शन है वो यहाँ पे दिखाया गया है। द डिस्क एट दिस इंस्टेंट हैज़ रेडियस कैपिटल R एंड द थिकनेस H एज शोन। यहाँ पे जो रेडियस है वो कैपिटल R है और हाइट दैट इज थिकनेस इज H. लेट द ओरिजिन ऑफ द सिलेंडर बी द R थीटा एंड y कोऑर्डिनेट टू बी एट द सेंटर O. यहाँ पे O पे सपोज हम अगर ले R जो है वो रेडियस के लिए होगा, थीटा जो है वो एंगुलर के लिए होगा और y जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये y है, यहाँ पे R है और इस डायरेक्शन में एंगुलर में थीटा है। ठीक है, और O जो है वो सेंटर है, तो उसके लिए जो पोर्शन मिलेगा ये कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पे y होगा, यहाँ पे R है और यहाँ पे एंगुलर में थीटा है। सो जो भी सर्कुलर सेक्शन है उसका हमने जो ये डी आर पोर्शन लिया है वो यहाँ पे होगा। यहाँ पे इंटरनल में सिग्मा आर लगेगा और यहाँ पे सिग्मा आर प्लस डी सिग्मा आर, और जो सिग्मा थीटा है वो इस डायरेक्शन में लगेगा। और सिमिलरली अगर क्रॉस सेक्शन एरिया हॉरिजॉन्टली लिया जाए तो हमको ऐसा मिलेगा सेक्शन, और उसके लिए सिग्मा आर ऐसे लगेगा, सिग्मा आर प्लस डी आर यहाँ पे होगा। जो प्रेशर होगा वो अप और डाउन यहाँ पे दोनों साइड पे लगेगा, दैट इज़ द एच। यहाँ पे ये जो सेक्शन है उसके लिए है, और द शियर स्ट्रेस है वो इस डायरेक्शन में लगेगा। फिगर शोज दैट द स्ट्रेस एक्टिंग ऑन एलिमेंट ऑफ डिस्क subtended an angle d theta at the center and the located between radius r and r plus dr. यहाँ पे जो भी फिगर बी में इंडिकेट किया गया जो स्ट्रेस एक्टिंग है कोई भी एलिमेंट के ऊपर, यहाँ पे ऑन द डिस्क सबटेंडेड एन एंगल डी थीटा एट द सेंटर एंड लोकेटेड बिटवीन रेडियस आर एंड आर प्लस डी आर।
आर प्लस डी आर के बीच में उसको लोकेट किया गया है. अज्यूमिंग द स्लाइडिंग टेक्स प्लेस बियॉन्ड द रेडियस आर एस के ऊपर सपोज स्लाइडिंग अगर लग रहा है तो उसके लिए यहाँ पे टाउ है फॉर आर एस बिटवीन कैपिटल आर एंड स्लाइडिंग रेडियस. स्लाइडिंग जोन के लिए जो टाउ है दैट विल बी इक्वल टू म्यू पी, एंड फॉर अदर देन स्लाइडिंग जोन देयर विल बी इक्वल टू के, जो हमने आगे देखा था. सिमिलर इक्वेशन है. फ्रॉम इक्विलिब्रियम कंडीशन अज्यूमिंग प्लेन स्ट्रेन कंडीशन it can be shown that Rs is equal to, by this equation, R minus h upon 2 mu ln 1 upon root 3 mu, and P1 is equal to root 3 k e raised to 2 mu by h into R minus R for sliding zone Rs less than or equal to R less than or equal to capital R. Same way for P2 for sticking zone it will be given by this equation. There is K is the yield strength of material, mu is the coefficient of friction. Now here the total force same way, but it is the circular way, so it will be the 2 pi 0 to Rs P2 R dr plus Rs to R P1 R dr. This will be given by this equation. Now let us discuss one example of this. In an open die forging operation, a circular disc of lead of radius 150 mm and thickness 50 mm is reduced to thickness 25 mm. In open die forging यहाँ पे जो रेडियस है, रेडियस दैट इज 150, और जो थिकनेस है यानी कि ये जो h है दैट इज़ 50 mm, एंड उसको हमने रिड्यूस किया है दैट इज़ रिड्यूस्ड टू 25 mm. उसको हमने रिड्यूस करके कितना कर दिया, यहाँ पे जो भी 25 mm की थिकनेस हमने कर दी. ठीक है. द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन जॉब एंड डाई इज इक्वल टू 0.25, and the average shear yield stress of the lead can be taken as 4 Newton per meter mm square. जो एवरेज yield strength है उसकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है. द हमको फाइंड क्या करना है, पोजीशन ऑफ स्टिकिंग जोन एंड एक्सप्रेशन फॉर फोर्जिंग प्रेशर इन 2 जोन. जो स्टिकिंग जोन है वो उसकी पोजीशन कहाँ पे होगी, और एक्सप्रेशन जो फोर्जिंग के लिए है प्रेशर का इन 2 जोन वी हैव टू फाइंड. So let the radius of the disc after forging be capital R since the volume of metal remains constant. Here जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे कांस्टेंट है, उसकी वजह से जो स्टार्टिंग में जो वॉल्यूम होगा वही एंडिंग में होगा. सो उन दोनों को कंपेयर करके जो हम R फाइंड कर सकते हैं और हमको R मिलेगा, एंड वी कैन फाइंड फ्रॉम दैट RS जो स्लाइडिंग रेडियस है वो, और म्यू इज गिवन हियर 0.25 and h is equal to 25, and capital R we found by comparing the volume of 2. We will get RS. Similarly for 170.28 to 212 that is our capital R. इन जो स्मॉल r है वो उसके बीच में होगा. सो उसके लिए P1 का इक्वेशन ये है √3 k e raised to 2 mu डिवाइडेड बाय h r डॉट r. उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, जो k है उसकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, k इज इक्वल टू 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर. देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ P1. सिमिलरली फॉर स्टिकिंग रीजन इट इज़ 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन और इक्वल टू 170.28, जो ये वैल्यू है दैट इज़ आवर RS. तो यहाँ पे स्टिकिंग रीजन के लिए जो R है उसकी वैल्यू 0 से RS के बीच में होनी चाहिए. उसकी पोजीशन का इक्वेशन ये है P2 इज इक्वल टू
जो स्मॉल आर है वो अभी हमने फाइंड नहीं किया हुआ है। यहाँ पे जो P2 फाइंड करेंगे, उसके बाद यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे जो भी P2 है, जो स्टिकिंग जोन के लिए हमको इस फॉर्म में मिलेगा, एंड द फाइनल आंसर जो है वो हमको R के फॉर्म में यहाँ पे मिलेगा। सो दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर. Thank you very much for listening me carefully. Have a nice day.